جب آپ کی خدمت کی ضرورت تھی تو نہ آ سکا، تو آج تو عرب سے بھی دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، سری لنکا سے دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، دلی ممبئی سے دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ ان پیسوں کو بچاؤ اور جب چھٹی ملے تو گھر آؤ اور آ کر کے دیکھو تیرے ماں باپ تو دنیا میں نہیں رہے، کہیں تیرا کوئی غریب بھائی تو نہیں ہے جسے مدد کی ضرورت ہے، تیری کوئی غریب بہن تو نہیں ہے جس کا تیرا باپ نے نکاح نہ کیا ہو تو اس کی شادی کا انتظام کر دو، غریب بھائی کے پڑھنے کا انتظام کر دو۔ سب ٹھیک ٹھاک ہو تو اس پیسے کو لے کر مولانا غلام وارث بلیابی صاحب کے پاس آؤ اور کہو حضرت میں آپ کے ادارے میں آنا چاہتا ہوں، میں ماں کے جنازے میں نہ آ سکا، 50,000 کا ٹکٹ لگ رہا تھا، یہ 50,000 میں لے کر آیا ہوں، میری ماں کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، میری ماں کے نام پر بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ میری قوم کے شہزادوں، میں یہ نہیں کہتا تم مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے مختصر فاتحہ کراؤ، مگر وہ کام کرو جو تیری ماں کے کام آئے، وہ کام کرو جس سے تیرے باپ کی دعائیں تجھے شامل حال رہے۔ اسلام کی شہزادیوں، آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، شادی کے بعد تیرا شوہر تجھ سے کہتا ہے کہ اے میری شریک حیات چل ممبئی میں عیش بھری زندگی جیئیں گے، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنے شوہر سے کہنا ماں باپ کو چھوڑنے والے پہلے تو مجھے چھوڑ دے، پوچھے گا کیوں، کہنا کہ جو بیٹا ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ زندگی میں کبھی بیوی اور بچوں کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں، اپنے شوہروں کو اس گندے قدم سے روکنا، کبھی ماں کو چھوڑ کر زندگی جینے میں مزہ نہیں ہے، کبھی باپ کو چھوڑ کر اس زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں رہ سکتی ہے، تو ایروپلین میں سفر کر سکتی ہے۔ آج زمانے کی لڑکیاں، تیری سہیلیاں تجھ سے کہتی ہیں تیرے شوہر نے تجھے نوکر بنا کر کے تیرے شوہر نے تجھے نوکر بنا دیا ہے، ماں باپ کو بھی کھانا بنا کر کھلاتی ہو، اسے بھی بنا کر کھلاتی ہو، کیا تم نوکرانی ہو؟ سلطان رضا کہنا چاہے گا اسلام نوکرانی نہیں بناتا، اسلام کو تجھے شہزادی بنانا چاہتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم کتنا ہی پڑھی لکھی ہوگی مگر خاتون جنت سے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی ہو، سیدہ خاتون جنت سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہو۔ یاد رکھنا اسلام کی شہزادیوں، شوہر کو بنا کر کھلانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کو روٹیاں بنا کر کھلانا، بچوں کی پرورش کے لیے کھانا بنانا، یہ خاتون جنت کی سنت ہے، یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ بڑا ہے؟ کہا سنو، ماں سے محبت زیادہ کرو اور باپ کی تعظیم زیادہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماں سے محبت زیادہ کرو، باپ کی تعظیم زیادہ کرو۔ اے اسلام کی شہزادیوں، خوب غور سے سننا، آج سماج کتنا بگڑ گیا، آج ماحول کتنا بگڑ گیا، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کیسی زندگی ہو گئی، ایمانداری سے بتانا میری قوم کے شہزادیوں، آج تم اپنے ساس سسر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو، آج تم اپنے شوہر کو ساس سسر سے الگ کرنا چاہتی ہو۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا بہت توڑتے اور جوڑتے ہیں، میں نے پوچھا سنا ہے آپ بہت توڑتے اور جوڑتے ہیں؟ کہا حضرت توڑتا نہیں ہوں، بس جوڑ دیتا ہوں تو اگلا خود ٹوٹ جاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، یعنی میاں بیوی کی محبت کی تعویذ لکھ دیجئے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا اے زمانے کی عورتوں، تم کہتی ہو بیوی اور تم کہتی ہو بچوں کو کھانا بنا کر کے کھلانا یہ غلامی ہے، تو غلامی یہ نہیں ہے۔ غلامی دیکھنی ہو تو کبھی پلین میں سفر کر کے دیکھو، غلامی دیکھنی ہو تو کبھی تیجس میں سفر کر کے دیکھو، غلامی دیکھنی ہو تو کبھی ایئر انڈیا میں سفر کر کے دیکھو۔ سلطان رضا تجھ سے کہنا چاہے گا تم نے پلین میں ہوائی جہاز میں دیکھا ہوگا، صاحب جو ہی داخل ہوئیے گا 4-5 حسین و جمیل بھارت کی مہیلائیں بڑی
पढ़ी लिखी BA MA की हुई खड़ी रहती है, मगर लिबास अपनी मर्जी का नहीं है, जुल्फे अपनी मर्जी की नहीं है, मेकअप अपनी मर्जी का नहीं है, कंपनी जैसा दिखलाना चाहती है वैसा ही तुझे बन समझ के खड़ा होना होगा। कंपनी का फार्मूला है, लिखा रहता है कपड़े पर पावर गर्ल्स, यानी ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं, ताकतवर महिलाएं हैं। ये शक्तिशाली महिलाओं का काम क्या है? काम ये है जितने यात्री जहाज में बैठे, जब पानी मांगे पानी ले जा कर दो, जब चाय मांगे चाय ले जा कर दो, जब खाना मांगे खाना ले जा करके दो। अगर कोई कमजोर बूढ़ा है टॉयलेट जाना है तो उन्हें पकड़कर उनकी मदद करते हुए लेकर के जाओ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा कि MA BA तक पढ़ने वाली लड़कियां जब एयरपोर्ट से लेकर और साहब एरोप्लेन में 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को खाना खिलाती हैं, आज तक किसी ने कहा कि ये गुलामी कर रही है, आज तक किसी ने कहा कि ये नौकरानी है, आज तक किसी ने कहा कि ये नौकरानी बनकर ये हमारी नौकर है जो चाय पिला रही है। कह दोगे FIR हो जाएगा, कह दोगे जेल में डाल दिया जाएगा, कह दोगे तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखना गैर मुहरिमों को खिलाना पिलाना और ये काम करना इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि इसमें इज्जत जाने का खतरा है। वरना विजय माल्या जैसे लोगों ने कितने एयर होस्टेजों की इज्जतें लूट ली। कभी तूने सोचा साहब वहां पे इज्जत का खतरा है? यही वजह है इस्लाम कहता है मगरिबी तहजीब और तमद्दुन में पढ़ोगे उनके करीब जाओगे, ये तुझे पढ़ा लिखा कर BA MA कराकर तुझे एयर होस्टेज बना देंगे, तुझे कॉल गर्ल्स बना देंगे, तुझे मॉडल गर्ल्स बना देंगे, तुझे सेल्स गर्ल्स बना देंगे। मगर जब तू इस्लाम के दामन में बेटियां आती है तो बेटी है तो नबी ने उसे बाप के लिए रहमत बना दिया है, बहन है तो इस्लाम ने उसे मोहब्बत बना दिया है, बीवी है तो इस्लाम ने शौहर के लिए वकार और सुकून बना दिया है, और माँ बन गई तो इस्लाम ने उसके कदमों में जन्नत बिछा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महबूबे सुबहानी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम के शहजादों आज तुम जिस जलसे में आए हो ईमानदारी से बताना ये महबूबे सुबहानी कॉन्फ्रेंस है, क्या तुझे पता है ये महीना किनका महीना है? आखिरी बात सुन ले 2-4-5 मिनट, किनका महीना है ये? गौ से आजम का जरा हाथ उठाकर बोल दे, किनका महीना है? किनका महीना है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा? खिला मेरे दिल की कली गौ से आजम है, खिला मेरे दिल की कली गौ से आजम है, मिटा मेरे दिल की बेकली गौ से आजम है, मिटा मेरे दिल की बेकली गौ से आजम। फिर कहा ये दिल ये निगाह है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौ से आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौ से आजम। बस आखिरी बात, आखिरी पैगाम सुन ले, इसे वाकया मत समझिएगा जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह कितने लोग उठ करके जाने लगे, खैरियत तो है, खैरियत तो है। अच्छा पैसा देने आ रहे हैं? अल्लाह मिलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए इत्मीनान से, मैं जानता तो पढ़ता ही नहीं, सिर्फ हुसूल बरकत के लिए पढ़िए, इत्मीनान से बैठे, इसलिए कि मेरे बाद हिंदुस्तान के उस खतीब को सुनने वाले हैं जिन पे खिताबत नाज करती है, कोई बाजारू खतीब नहीं साहब, जिसने खिताबत को पेशा बनाया हो, जिसने हदीस मुस्तफ़ा को लोगों तक पहुंचाने का को जिंदगी का मशगला बना रखा हो, उस खतीब के खिताब को आप सुनेंगे।
इसलिए साहब इत्मीनान से बैठिएगा, हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए मकतब है। और साहब फिर उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे, फिर क्या आलम होगा, इसलिए गौर से सुने। साहब किस माँ ने गौस को गौस बना दिया, किस बाप ने गौस को गौस बना दिया? आज जो टीवी पे बैठकर इस्लाम पर कमेंट करने वाली महिलाओं को सुल्तान रजा चैलेंज करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम तुझे बुरा लगता है इसलिए कि इस्लाम पर्दे की बात करता है, इस्लाम तुझे बुरा लगता है इसलिए कि माँ बाप की मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम तुझे बुरा लगता है इसलिए कि शौहर की खिदमत की बात करता है। मेरा चैलेंज है, तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, चांद पे तुमने कदम रखा है, हिम्मत तो पेट से एक इंजीनियर बच्चे को जन्म दे दो, है हिम्मत तो पेट से एक डॉक्टर बच्चे को जन्म दे दो। कहेंगे नहीं मौलाना, 9 माह बच्चा पेट में पलता है, 2 साल दूध पीता है, 3 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करता है, 25-30 साल की उम्र में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनता है। मैंने कहा यही फर्क है तुझ में और उनमें। सुनो, तेरी तरक्की ये है कि तुझसे जन्म लेने वाला बच्चा 30 साल बाद इंजीनियर, डॉक्टर बनता है। इस्लाम की तरक्की ये है कि सैयदा खातून जन्नत की खादिमा हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बच्चे को पेट में ही 18 पारा का हाफिज कुरान ज़मीन के ऊपर जन्म दिया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताओ ये बच्चा कौन है? इन्हें ही तो पीराने पीर दस्तगीर कहा जाता है, इन्हें ही शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी कहा जाता है। बाप के तकवे का ये आलम। हम सोचते हैं ना, बुरा ना मानिएगा, हमारे बच्चे यूं ही बर्बाद ना हुए, हम भी तो बर्बाद हुए हैं। हमने जैसी कमाई चाहिए वैसा खिला दिया, जैसी आमदनी आई वैसा खिला दिया। हमने कभी नहीं सोचा बीवी को हलाल खिलाए, हमने कभी नहीं सोचा अपने बच्चों को हलाल खिलाए। गौसे आजम के वालिद है, तकवा परहेजगारी का ये आलम के जमाना उन्हें मूसा जंगी दोस्त कहता है। आलम ये हफ्तों भूखे रह जाते, दरियाए चला के किनारे पानी की सतह पर एक सेब खा लिया था, बागीचे में पहुंच गए। कहा हुजूर, बागीचे का सेब गिरकर दरिया की सतह पे बहता है, लोग खा लेते होंगे। कहा अब्दुल्ला सौमई ने, सरकारे गौस के नाना ने, हाँ खा लेते हैं। कहा हुजूर मैंने भी एक खा लिया, खा लिया। कहा तो नौजवान कहना क्या चाहते हो? कहा कहना ये चाहता हूँ, या तो उसका बदला ले लीजिए या मुझे माफ कर दीजिए। अब्दुल्ला सौमई अल्लाह के वली थे, समझ गए मकतबे इश्क का दस्तूर निराला रहा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। देखेंगे आप साहब, बेटा गरीब भी हो ना और माँ बाप की खिदमत करने वाला हो तो माँ बाप बड़े बेटे कहते तू चला जा, इसी को रहने दे, ये खिदमत करता है। शागिर्द थोड़ा कमजोर भी हो मगर उस्ताद का वफादार है तो चाहता है उस्ताद के छुट्टी के दिनों में काश ये रह जाता, फिर उस्ताद दुआएं देता, बेटा फिक्र न करो, अल्लाह ने चाहा तो फिर तेरी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी होगी। मैंने बहुत सारे मदरसों में तेज तर्रार पढ़ने वाले बच्चों को देखा जिन्होंने असातिज़ा का अदब न किया, तो जहाँ थे वहीं है, लेकिन मैंने वैसे भी बच्चों को देखा जिन्होंने उस्ताद का अदब किया तो उनकी दुआओं ने उन्हें वक्त का मायनाज इंसान बना दिया है। इसलिए अपने असातिज़ा की कदर को न भूलना, अपने माँ बाप की इज्जत को न भूलना। अब्दुल्ला सौमई समझ गए, ओ नौजवान, सेब तो बहुतों ने खाया मगर तुझसा इंसान कोई इस बागीचे में नहीं आया। कहा माफी नहीं है। कहा हुजूर करना क्या होगा? कहा 12 साल बागीचे की खिदमत करो, 12 साल। अब एक ही सेब की बात है, बुरा न मानिएगा, हम लोगों का हाल तो ये है, अब हलाल खा रहे हैं कि हराम पता भी नहीं है। देखा होगा आपने, बहुत वीआईपी वलीमा आप लोग खाते हैं ना, वीआईपी वलीमा, क्या चिकन चिल्ली है, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या बिरयानी है। अरे अल्लामा साहब इतना बेहतरीन वलीमा तो मैंने आज तक देखा नहीं था। क्या खाना बनाया, गोरखपुर से बावर्ची आया था। अरे वो मुर्ग मुसल्लम खाने वाले, बिरयानी खाने वाले, जरा वलीमा कराने वाले से पूछा भी कि कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का तो वलीमा नहीं करा रहा है, जहेज के मांगे हुए पैसे का तो वलीमा नहीं करा रहा है। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है,
शराब के से कमाया हुआ पैसा हराम है। शराब की तस्करी करने वालों, ये पैसा हराम है। स्मोकिंग बेचने वालों, चरस अफीम गांजा बेचने वालों, इसे बेचकर पैसा कमाना हराम है। जुए का बाजार चलाकर पैसा कमाना हराम है। रिश्वत में पैसा कमाना हराम है। सूद में पैसा कमाना, अरे बोलिए, हराम है। ऐसे ही जहेज में पैसा मांग कर लेना, जोर से बोलिए, जहेज में पैसा मांग कर लेना, और जोर से बोले, जहेज में पैसा मांग कर लेना हराम है। खूब गौर से सुनिएगा, हराम है। लेकिन आप एक बार भी नहीं पूछते, आप तो सिर्फ डिश खाने में रहते हैं, पेप्सी कोको कोला पीने में रहते हैं। कभी पूछा था, ओ साहब अपने बेटे की शादी में 10 लाख लिए थे, बता तूने ये इंतजाम कहाँ से किया है? अगर तुमने अपने पैसे से किया है तो बता, फिर मैं तेरा वलीमा खाने को तैयार हूँ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, कभी अपने बाप से कह देना, ए मेरे बाप, मेरा तू सौदा ससुराल में न करना, मुझे ससुराल वालों के हाथों न बेचना, पूरी जिंदगी बीवी के सामने रुसवा न करना। बता, शादी के बाद बीवी से सेल्फी के साथ कहते हो आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी ने पलट कर पूछा, बहुत मोहब्बत करते थे तो मेरे बाप की जमीन किसने बेचवा दी? बहुत मोहब्बत करते थे तो मेरी माँ के जेवर किसे बिक गए? बहुत मोहब्बत करते थे तो तिलक में इतना मेरा घर का जमीन जायदाद क्यों बिक गया? पता चला ये बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर था, मगर इतना भी पैसा नहीं था कि बीवी के लिए एक अपने पैसे से गाड़ी भी लेकर के जा सके, एक पालकी भी लेकर के जा सके। उसकी आंखों ने देखा था, ये आने वाला रिश्वत लेने वाला है, ये आने वाला सौदा करने वाला है। यही वजह है बहुएं आकर घरों में इज्जत नहीं करती है, इसलिए उसने देखा था ये वो शख्स है जिसने मेरे बाप को रुलाया है, ये वो शख्स है जिसने मेरे भाइयों को गालियां दी है, ये वो शख्स है जिसने मेरी माँ के जेवरात को बिचवा दिए हैं। खुदारा सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कभी ससुराल से मांग कर स्कॉर्पियो पे न चढ़ना, कभी ससुराल से मांग कर अपाची और बुलेट पे न चढ़ना, कभी ससुराल से मांग कर सफारी सूट न पहनना, याद रखना, न पहनना। सुनो, गुरबती में शादी कर लेना, गरीबी में शादी कर लेना, घर वाले जहेज मांगे तो बगावत पे उतर जाना, शरीयत के मामले में मस्जिद में जाकर निकाह कर लेना, वलीमा के लिए पूरे गांव को न खिलाना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती के बाद आका ने 1 प्याले दूध से वलीमा किया, 1 प्याले दूध से वलीमा किया है। तुम भी 10-11 प्याली चाय लाना और उलमाए कराम को बुला के पिला देना, कहना हुजूर वलीमा यही है, आप दुआ कर दीजिए, वलीमा यही है। मगर जिंदगी में कभी जहेज न मांगना, जहेज न मांगना। याद रखना, बुरा न मानिएगा, 50 जोड़े कपड़े आप मांगते हो अपने समधियाना में, बेटे की शादी में, जो मांग कर तूने 50 जोड़े कपड़े लिए हैं, ये रिश्वत है, ये हराम है। बताओ, उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ोगे तो क्या होगा? बोलिए। आप हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, मास्टर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, खुदारा अगर खुशी से आपका समधी एरोप्लेन दे दे, ले लीजिए, मकान दे दे, ले लीजिए, बिल्डिंग दे दे, खुशी से, अपनी मर्जी से जबान न खोलना, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। ए मेरी कौम के नौजवानों, 12 साल अब्दुल्ला सौमई के बागीचे में सरकारे गौस के वारिद हजरत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त खिदमत करते रहे। 12 साल बाद अब्दुल्ला सौमई ने बागीचे में कदम रखा और कहा, नौजवान जरा कच्चे और पक्के फल, जरा फल तोड़ करके लाओ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद गए, क्या कच्चे क्या पक्के फल लेकर आ गए। कहा, नौजवान 12 साल से बागीचे में हो, इतना भी पता नहीं कच्चा फल कैसा, पक्का फल कैसा। कहा, हुजूर कसम ले लीजिए, 12 साल मैंने बागीचे की खिदमत की है, मगर एक बार भी इन निगाहों से मैंने बागीचे के फल को नहीं देखा है। कहा, ऐसा? कहा, हाँ, एक सेब खाया था, अब तक सजा पा रहा हूँ, दूसरा खा लेता तो क्या होता। कहा, तो एक सजा और बढ़ गई। कहा, हुजूर क्या? कहा, मेरी एक बेटी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, शादी कर लो। कहा, हुजूर दीनदार है कि नहीं? मुझे दौलत नहीं चाहिए, हुस्नो जमाल दीनदार। कहा, बेशक मेरी बेटी है, दीनदार है। कहा, हुजूर
हुजूर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसलिए नबी ने फरमाया फास्फरो बेज़ाती दीन, ये हुस्नो जमाल खत्म हो जाएंगे, दौलत खत्म हो जाएगी, लेकिन सुनो ये तकवा और परहेजगारी खत्म होने वाला नहीं है। तकवा परहेजगारी देखकर निकाह करो। कहा हुजूर निकाह कर दीजिए। जब निकाह हुआ और हजरत अबू साले अपने कमरे में गए और हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर को देखा तो साहब वो तो वलायत के रोशन चिराग थी, क्या पूछना, जिनके नूर से पूरा कमरा मनव्वर था। फौरन वापस पलट गए। जो ही वापस हुए अब्दुल्ला सौमई ने रोका, नौजवान क्या बात है? कहा आपने जिससे निकाह किया वो लड़की घर में नहीं है, वो तो आपने कहा था अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, मगर ये तो सब कुछ ठीक है, ना अंधी है, न लूली है, न लंगड़ी है। सुनो गौसे आजम के नाना ने क्या कहा? कहा नौजवान मैंने अंधी इसलिए नहीं कहा कि मेरी बेटी को दिखता नहीं है, अंधी इसलिए कहा कि बचपन से लेकर जवानी तक उसने इन निगाहों से किसी गैर को नहीं देखा है। इस्लाम की शहजादियों खूब याद रखना, और शहजादों तुम भी याद रखना, जब माँ इतनी नेक हो कि बचपन से जवानी तक किसी गैर को न देखे, और बाप इतना नेक हो 12 साल बागीचे में रहकर दूसरे की दौलत पे नजर न डाले, जब ऐसी पाकीज़ा हस्तियों का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे आजम दस्तगीरा, हजरत शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप चाहते हैं आपकी नस्लें नेक हो, इन निगाहों की हिफाजत कीजिए, इन आंखों की हिफाजत कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मदरसा मखदूमिया अरबिया मखज़नुल उलूम के प्रिंसिपल साहब ने, मौलाना महबूब अहमद मिसबाही साहब ने किताब लिखी है ज़ियाए हक़। इंशाअल्लाह आप इसे जरूर लेकर, कितनी कीमत है? 15 रुपए। माशाल्लाह इसे ले जाएं, अपनी औलादों को पढ़ाएं। आखिरी पैगाम बात निगाहों की चली है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है माज़ल्लाह या रसूल अल्लाह मुझे जना की इजाजत चाहिए। सहाबा सुने नाराज हो गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार खींच ली, कहा नौजवान मैं तेरे सर को कलम कर दूंगा। आका ने कहा डर जाओ, ये बुरा नहीं था, गंदे माहौल ने बुरा बना दिया, बिगड़े माहौल ने बुरा बना दिया। सबसे पहले माहौल को अच्छा बनाइए, बिगड़े माहौल को बुरा बना, बिगड़े माहौल ने इसे बुरा बना दिया है। आका ने करीब बुलाया, सीने पे हाथ रखकर कहा नौजवान तू क्या कहता था, बता तू जिस काम के लिए उस लड़की से के साथ जो करना